اس وقت ہم موجود ہیں مل وڑون میں. یہ ڈسٹرکٹ کشتواڑ کا علاقہ ہے جہاں کچھ دن پہلے جو ہے آگ کی واردات پیش آئی. اس واردات میں گاؤں کے تقریباً 70 سے 75 مکان جو ہیں زد میں آئے ہیں. کہیں بچو نا ٹینٹس تل چھم کال ژورن دۄہن کر کیا خاندار چھم بُڑٕ سۭتۍ پیٚو پانس رشتہٕ دار آو پنُن میون بچو کیا کر کیا بیٚہمہٕ کتہِ تہِ بُڑٕ پان خاندار تہِ بُڑٕ پان کر کیا آج کل کتھ چھو روزان نہ حظ بس یہ ونکن کتھ چھو روزان ونکین ترٛٮ۪ن دۄہن ٲسۍ ہیرٕ اتہِ وٲتۍ ٹینٹن وۄنۍ دِتِکھ نہ ٹینٹ ٹینٹ دِتُن تٔتھۍ تل کھیوٚن چیوٚن چھُنہٕ کینٛہہ نہ چھُ کانٛہہ اوسُس کُنی زٔنۍ شُرۍ ٲسۍ موزوٗرۍ کران تِم چھِ موزوٗرۍ رٮ۪تہٕ تِم چھِ موزوٗرۍ کران 2 دۄہن ٲسٕس ٹینٹس تل کانٛہہ آو نہٕ تور میون پھل کتہِ چھُ دزان میون ترام کتہِ اوسُم کیازِ منٛزن نہ کوٚڑُم نہ نیوٗم کُنی ٲسٕس یہِ گٔے بے ہوش مےٚ دوٚپ بالین کوٗر چھُ کر کیٛاہ دُنیا اوس یِمن نِش کیٛاہ کرٕ بٲے لٔگِتھ موزوٗرۍ کرٕنۍ تِمن بِچٲرۍ اورٕ انٛدن باسان موزوٗرۍ کران کرہا کیٛاہ أسۍ ٲسۍ ییٚتہِ فصل ٲسۍ کٔرمٕژ جمع یۄس کٔرمٕژ جمع وۄنۍ وٹھوٚن ٲسۍ لگان یِمن بانن منٛز وۄنۍ لوچاو یِمو شُریو بتہٕ کھیوٚن بہٕ اوسُس پران نٮ۪ماز یتھ کچنس ووتُم کمرس منٛز اوسُس پران نٮ۪ماز یُتھُے بہٕ نٮ۪ماز سُہ فرض مۄکلووُم پٔرِتھ تِتھُے آیہِ دارِ کِنۍ نارِ ژھٹھ نٮ۪برٕ تہِ لُکو کوٚر نارو اَسہِ آو دروازٕ کھوٚت نا بُنمِیان نار ہیوٚر کُن اَسہِ آو دروازٕ والنہٕ أسۍ سیٚدے اَسہِ اوس بوٚڑ لٔڑکہٕ اکھ تٔمۍ کرے کوٗشِش نٮ۪بر نیرنٕچ تہٕ تٔمِس بنیو نہٕ کینٛہہ سُہ ہولُکھ پتہٕ کھٔکھرِتھ نٮ۪بر توٚتام رٔٹٕن یہِ گرنہٕ تہٕ دٔپِن یہِ گرنہٕ یورٕ کن تٔمۍ ییٚلہِ سۄ نٮ۪مازِ مٔژھ تٔتھۍ قۄران شریٖفس منٛز برونٛٹھ کَنہِ سُہ تہِ توٚر تہٕ سُہ تہِ تَمیُک چھُم زیادٕ سُہ تہِ دوٚدُم تٔتھۍ منٛز نۄقصان چھُنہٕ شُمارس کینٛہہ اگر بہٕ وَنو حِساب ییٖژاہ مےٚ ترٛامٕے یوت تیٖژہن تہِ یی نہٕ اورٕ ہُتہِ وٕچھکھ ژٕ وۄنۍ کوتاہ ترٛام چھُ یہِ کُنہِ جایہِ گوٚمُت جمع نہ تہٕ باقٕے چھنہٕ کَتٕکۍ نۄقصان کوتاہ گوٚو تہٕ کیٛاہ ہٲنو کیٛاہ اوس ٹایم کیا اوس تٔمِس دۄہلیُک وقت اوسا 2 بجے بہٕ نٮ۪ماز بہٕ ٲس نٮ۪ماز مۄکلٲمٕژ پٔرِتھ وۄنۍ ٲسٕم یہِ ہسا یہِ ووتُم تھوٚد تام گوٚو اِظہار نار پتہٕ بنیو نہٕ کینٛہہ پتہٕ اَسہِ ٲسۍ زنان مٔہنی جورا گرِ باقٕے ٲسۍ اوٗرۍ نٮ۪بر تَمیُک اِظہار تَتہِ اوس ییٚتہِ ماشٹر اکھ اوس ییٚتٮ۪ن اَکُے ماشٹر اوس ییٚتہِ نہ اوس کُنہِ آب نہ بالکُل آبُک ناو اوس نہٕ کُنہِ ترٛٲش تہِ تِمن گوٚو گاش تِمن یا کھۄنہِ منٛز اوس ماشٹر اَکُے ماشٹر اوس ییٚتہِ بیٚیہِ اوس نہٕ کانٛہہ خۄدایس بغٲر بیٚیہِ اوسُس بہٕ بیٚیہِ ٲسۍ شُرۍ تہِ زنان مٔہنی باقٕے اوس نہٕ کٕہٕنۍ خۄدایس یوٚتام یہن گٔے کورس سورُے پتہٕ آیے لُکھ تہٕ مگر اَسہِ اوس مۄکلومُت ہُمو کوٚر باقٕیو لُکو قبض کینٛہہ مگر یِمو 15 گرن نہٕ بالکُل کِہینۍ تِم گاڑِ آیہِ فایر سٔروِس گاڑِ نار سیٚوراونہٕ خٲطرٕ تِمن کوٗتاہ ٹایم لوٚگ تِمن ٲسۍ بِچٲرۍ تِمن بچ نہٕ وَتہٕ یورٕ نہٕ روڈٕ تہِ چھُکھٕنۍ یورٕ کَپٲرۍ کھسن تہِ تِم واتاے پتہٕ توٚتام اوس ہٹیومُت سورُے نار توٚتام اوس ختم لوٚگمُت گژھنہٕ پتہٕ کیٛاہ کرِہن تِم تہِ بِچٲرۍ نار لوٚگ کٔمۍ سۭتۍ سۄ چھا وجہ پتہ کٲنٛسہِ پاے چھُنہٕ کینٛہہ ییٚتہِ ہوٚچھ أتھۍ منٛز گوٚو اِظہار شُریو دیُت کیٛاہ دٔلیٖل گٔے اَتھ منٛز کیٛاہ اوس تہٕ کیٛاہ تٔمسٕے رۄبس پتہ یہِ اوس اَسہِ پنٛنُے اللہ تعالیٰ سُنٛد قہر تٔمۍ سُنٛدٕے اوس رۄبہٕ سُنٛد مرضی توتہِ زوٗ بچے اِنسان بچے توتہِ یِہوے افسر آوے اَمِچ زایے اکھ آیو یہِ گۄڈنِچہِ دۄہ پیری لال صٲب بیٚیہِ آیو یہِ آز یہِ بیٚیہِ کُس افسر آیہِ وٕنۍ دۄہ گٔے 2 یا 3 یوٚتام لُکن وۄنۍ پتہ لوٚگ کشمیٖرٕکۍ لُکھ آے واریاہ مَڈِ پٮ۪ٹھ تہِ آے لُکھ واریاہ مگر کرن کیٛاہ بِچٲرۍ ییٚتہِ توتہِ ییٚتہِ یِوان چھُ کانٛہہ سُہ چھُ دِوان نظرا تٔمِس چھُ وَدنہٕ یِوان سانہِ نِش چھُ بَتر چھُیی نہٕ کینٛہہ روٗدمُت تہِ یورٕ کینٛہہ وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان کیٛاہ گژھِ گژھُن جلد از جلد برونٛہہ چھِ وۄنۍ گوٚژھ بَنُن یہِ بیٚہنَس گوٚژھ وٕچھُن یہِ مُلک سُہ پگہہ پیٚیہِ شیٖن تہٕ گژھن کوٚر نہ چھُ روزِ وَتھ کُنہِ نہ کُنہِ ہُنٛد ہُہ تہٕ نہ یہِ گژھن کوٚر تہٕ کرن کیٛاہ وۄنۍ نہ چھکھ بیٚہنَس کُن جاے کُنہِ نہ چھُکھ کھیوٚن کُنہِ نہ چھُکھ بانہٕ کُنہِ کرن تہٕ کرن کیٛاہ کینٛژھو یِمو کوٚر وۄنۍ کینٛہہ بِچاریو ڈیرٕ کھیٖمَس پیٖمَس تل یِمن نہٕ کِہینۍ چھُ تِم کیٛاہ کرن تِم کوٚت گژھن تِمن چھُنہٕ ترٛٲش دام چٮ۪وان أسۍ چٮ۪مو ترٛٲش باقٕے اگر ترٛٲش چٮ۪مو تَتھ ژھٕنو تہٕ بیٚنہِ بانہٕ کُن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یور کُن تٔتۍ سٲری بۄن چھِ کٔتۍ تام گرٕ بہٕ بس تِتھُے باقٕے دوٚد سورُے کینٛہہ جایہِ چھِ ہٮ۪کان پَتہٕ ناہنٲیِتھ تہِ کینٛژھا کوٚرُکھ ہورٕ یورٕ تہِ مگر باقٕے دوٚد سورُے
क्या तो कड़ाव तो सामान तब सो रवि नाव गो खोर तो योर तथ लोगो पाई क्या आव छकन क्या गो क्या यमिस ये ओस गरस में सु गो जाए सह गो जाई कस कड़ तमन गरन न जाई न क्या नु नार नी सोरे नु न नु खुदाई नी ये मुजरा पुजरा कर बे क्या कर बाकी कस लोग कह शुराब तो लोग मुलाजिम कह तो बस थे बाकी बाकी बह दपान अड़न मा गई दिमाग मेकिन खराब वह तिथ हालात गमत अड़न जनान महन चुन हेस ये गरस में जनान मह तम बिल्कुल बिहत अक्स जाए तम थोदे योत उम्र बिचार जमा कोर्मुत बनान आज कर फल फल घास लान कर खरी जमा ये वटा उन्नक तो दितनक नार वो थोड़ी लंबी बातें हैं, चाहे वो टनल को लेके हो, रोड कनेक्टिविटी को लेके हो, स्पेशल भर्ती को लेके हो, बिजली का, कनेक्टिविटी का। अब आप यहाँ पे हो, टावर नहीं है, आप अपना स्टोरी यहाँ से भेज नहीं सकते हो, हम यहाँ से कोई मैसेज भेज नहीं सकते। अब मैं फौरी तौर जाके श्रीनगर जो कंपनियाँ हैं, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे BSNL हो, उनसे राब्ता करके उनसे कहूँगा कि यहाँ कनेक्टिविटी का फ़ौरन इंतज़ाम किया जाए। फ़िलहाल हमने यहाँ फायर सर्विसेज का इंतज़ाम नहीं किया। यहाँ फायर गाड़ी को पहुँचने में 6.5 घंटे लगे। अनंतनाग से गाड़ी आई, तब तक तो गांव जो है ये ख़त्म हो गया था। प्रधानमंत्री का जो रिलीफ फ़ंड होता है, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फ़ंड, उसके तहत भी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश की जाएगी कि वो थोड़ी सी मदद यहाँ भेजें, और जो गैप रहता है वो हम पूरा करेंगे। इन्हें लकड़ी का जो है, हमें इनके लिए लकड़ी का इंतज़ाम करना होगा, टिन शेड्स का इंतज़ाम करना होगा, और थोड़ा सा मुफ्त राशन भी हमें यहाँ पहुँचाना होगा, क्योंकि जो भी इनके पास था। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि ये जो गांव है पूरी तरीके से जल चुका है, खाकस्तर हो चुका है। तकरीबन जैसा यहाँ के लोगों का कहना है 80% जो है 80% जो है ये बस्ती, ये गांव जो है जल चुका है। अगर इस गांव की बात करें, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का हिस्सा है, इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, लेकिन किश्तवाड़ से काफ़ी दूर है, यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त लगता है। कश्मीर के काफ़ी नज़दीक है, कोकरनाग से काफ़ी नज़दीक है ये गाँव। सोरे कहीं रोद ना बिल्कुल कोड़मुत कह खाली कागज रंग कह कोड़मुत बस बेन कह शुर मिनरे नारन मज योतन तमन मज रातस खोरन हंद बूट नन वड़े खोर इन हपर जमीन पे बिह बिह नजर दि सोरे कबाड़ थो मे तो वनी तो कबाड़ बोल त्राम मच ये कबाड़ त्राम तम त्राम मच इथे कर गैस बड़ मोदी गैस तम फट शिश्तर कबाड़ क्या गैस वीस सोरे यपरी कबाड़ बन पता बस अंदर कन हेर कन ये फल वल ओर ओनमुत फोर दोपक अत फोट गैस बोड़ गैस तम बड़ गैस सू फोट पे मे कह पाई ओर द्राय नार रिहे हमदर काकन ज गर तम कोर मे आलो दोपन ज नेर नेबर नेबर हेतु नार ब्रोट वोलमुत पत्कन जगह तथ कह नेरनस कुन चलनस वत ये कर बिठ योतन वत हेतुन ये पे ये बिहत वो क्या ये नार वुच दो मर्द महनी कह बेस तम ऊर बेस यम सद लड़क पे ये हिरम छत वोत तम सद लड़क सत हेराई दोपस वह वस पे वोलस ये सह लड़ पिठ वोल बोन सह सू योतन तो बेठस होतन तमाश वुचन बे चाय चे हेहरबा बह क्या कर बिचर पानस अड़सार ये नार गो इजहार त्रे वहाँ मुझे पुलिस वाला आया, सेट लगी कि अब्दुर्रहीम बाहर निकलो मैं क्लास दे रहा हूँ स्कूल में। और मैंने कहा क्या बात है, क्या हुआ है? तो वो कहते हैं कि कोई घास का मकान जल गया है, हम 6 महीने के लिए घास जमा रखते हैं को, वो कहते हैं कि वही जल गया, घास कोठा जल गया। मैंने कहा वो अंदर से ही क्लास में मैंने कहा घास कोठा जला, निसार साहब घास कोठा जला नहीं, ये मेरा मकान जला। क्यों? तो क्यों? मैंने कहा मैंने 3 दिन से नींद नहीं की है। रोते रोते पापा सारा कुछ जल गया। मैंने आप छोड़ो, सारा कुछ जल गया तो अल्लाह देने वाला है, जब उसने उतना दिया है तो अब वो देने वाला है।
और मैंने कहा आप निकल, मेरा चाचा निकल गया, ये इसका गर्दन जल गया, मेरे चाचे का गर्दन जल गई। तो बीवी मेरी बीवी निकल गई, वो कहते हैं कि वो भी निकल गई। मैंने कहा जो आप सब निकल दो, पापा मैं निकल गया, मगर हम पिछले खिड़की से निकल गए कि जब हमारे हमसाये को आग लग गई और वहाँ से गैस फट गया और जो चूल्हे का गैस वो भी फट गया, वहाँ से वो आग आ गई तो उसने हमारा दरवाज़ा खिड़कियाँ कवर कर ली। हम तो पिछले खिड़की से हमने उसको तोड़ा तो हम वहाँ से निकल गए। और मैंने उस बेटे ने कहा कि मैंने आपकी डॉक्यूमेंट निकाली है और अपने अंकल के डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट मैंने निकाले। मैंने कहा शुक्र अल्लाह का आप निकल गए और मेरे डॉक्यूमेंट निकल गए, बाकी तो अल्लाह देने वाला है सब कुछ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो कुछ न कुछ इंतज़ाम करेंगे, ये टीन और लकड़ी का बस, ये और पैसे का बस, बाकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम रहाइश के लिए 6 महीने जो हमारा रोड कटअप रहता है, हम 6 महीने बंद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट समझो कि स्टेट से हम बंद रहते हैं, हमें कोई कनेक्शन नहीं होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम रहने के लिए कम से कम कुछ करेंगे। और अगर गवर्नमेंट चाहे हमें पैसे और टीन और लकड़ी का कोई इंतज़ाम करे। ये मेरा बाग है, सेब का बाग और अखरोट का बाग है। हमने वो जमा किए हैं इस मकान में, अखरोट सेब हमने जमा किया। हमने कहा अब इसको ठीक करेंगे, सुखाएंगे तो सेब को पैक करेंगे तो हम बेच देंगे, और वो भी जल गए। आप देखते हैं बाग, ये मेरा है बाग, आप खुद देख रहे हैं, ये मेरा बाग है। तकरीबन कितने मकान होंगे जो यहाँ हद में आए? तकरीबन 100 मकान हैं। हाँ, इसके हर मकान में 2-2, 3-3 चूल्हे हैं। 100 मकान जल गए एट अ टाइम, 1 घंटे में। और ऐसे कुछ ऐसे मकान है, ऐसे घर है जिनको बिल्कुल सुई, समझो कि सुई निकलनी नहीं है, कुछ बिल्कुल कुछ नहीं। आप खुद देखते हैं क्या निकलेंगी इधर। लोगों ने जान बचाने की कोशिश की। इस गांव की हालत जो है लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, लोग जो हैं बेहाल हैं, लोग सड़कों पे आ चुके हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। कुल मिला के बात करें, जैसा यहाँ के लोगों ने कहा, तो तकरीबन 125 के आसपास मकान होंगे, जिसमें से 80 मकान जो है खाकसर हो चुके। जैसा कि हमने आपको बताया कि मौसम सरमा में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। तो ये गांव किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में तो है, लेकिन कनेक्टिविटी इसकी ज़ीरो हो जाती है। 6 महीने के लिए ये गांव जो है कट के रह जाता है, यानी न कश्मीर न किश्तवाड़, किसी के साथ अगले 6 महीने के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती है। तो अगले 1 महीने में जब बर्फ़ होगी, जब यहाँ सर्दी शुरू हो जाएगी, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, ये लोग क्या करेंगे, इनके पास उस चीज़ का कोई जवाब नहीं। योत्ताम च नार लोगमुत या यह सड़क मगर यमी सड़क हर प्रोन बस्ती सारे वह कैन चंद नफर मालन नश बिन द्रमित यमो नए मकान बन बनमित तो बाकी सारी ये बसान सारी चूल मज तो क्या नई नई बन बन तो यम बचे नई तो ये मे पता कम सित लोग नार के अंदाज न तन पता यह कुदरत मनुष्य खुदा सुन मनुष्य बारिश वुच यह खुदा सुंद मनुष्य अब वुचा तेल त्रो ना यल ना यह खुदाई बरात कुदरत यह कोर खुदाई नहीं कोर यह कत्या मकान गामस मज आबादी ये वनकन तकरीबन 2-2.5 हथ चूल मकान हेक वन चूल क्या मकान मज 4 चूल 3 चूल 5 4 बार जनाब बिन बिन 4 मंडव एक मकान मज 4 सो बार बिन बिन थे पे बाकी मकान मज वनकन बासन मगर यह मकान यस वो 4 बार इथे पे योकन ब्या अत मे इथे पे 4 बार वो कोर्मुत ओर योर क्या अंदकुन पनकुन तमिस बचो मगर बाकी बचो नतन एरिया मज कहीं इंसान वेर बचे माल बचो मगर बाकी यह ओनमुत वरियस कमोमुत कोर्मुत कह चीज सह मोकलो सोरे ना दुन कड़न क्या ना आब आब मगर यह गो हेर गो यह बंद आब कम वारिया कम ये ना बोड़ नाल नजदीक क्या
ये नागा वागा हेर वसन क्या था ये बस्ती बोर नाल आब ये कह बस्ती कम आब वारिया कम बिजली नावे ना तमिक सिकिस तम मुफ्ती साहबन तम सोलर गैस तमन पे गुजारा करान फोन नहीं चलान वीडियो नहीं चलान कहें कहाँ फैसिलिटी ये अगर एम्बुलेंस आब गाड़ी यूत मा ग नुकसान जाया इससे सजा सुबह कश्तवार शाबन मज यूत तो दुनिया मुकलियोमुत अच्छन कहाँ रफाकत वे प्रानसी खातस मन वही योत गाम हर गाम माजबी कर दौद अस पे शर्टस मज तुल चार पाई कह स्कोप पता जहाज पाठो ये जहाज में निवान कश्तवार अगर न पाठो जैसा बारन छिन घर निवान वापस यह चीज फैसिलिटी वंदस बस जिस 5 फुट शीन 6 फुट शीन पेवन हेलीकॉप्टर हस्पताल वात अगर सह वो टाइम अगर न द्रास जान मसरा नोमुत हे शीन पेवन ओर यी न हे वनर क्या दूम गई तमिस 2 दह तहसील तो तस मारन हस्पताल के ना हस्पताल कहें मगर तमन्ना ड्यूटी न कहाँ हेल्थ सेंटर छा अवा मत तथ न बस्ती ना नौकरी कर कहीं न वारिया तथ लगे 10 मुलाजिम हावन यह कर कहाँ मिनिस्टर जा पत तथ कहीं पत तथ कहाँ अगर ये कह बीमार गो ये कहीं फैसिलिटी ये अगर लोकल कह दवा हेचमुत ना और तो सूच वंदस ये दवा फुल दिवन लोकल ये सरकार ने कहाँ पन्ने हिसाब दिवान वही तब जाए चीज हेचमुत दवा फुल कोई ऑपरेशन हेकस कर बे क्या हेकस कर कल दवा फुल दिया नजदुक दिया बुखार दिया बेरी क्या बाकी क्या कर ना 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 इस गांव की बात करें तो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ वोटर्स 650 मौजूद हैं और कुल मिला के जो लोग हैं वो 1000 के आसपास है। और जैसा हमने कहा कि 80% जो है यहाँ की आबादी इस वक्त सड़क पे है, क्योंकि तमाम तर जो मकान उनके हैं वो खाकिस्तर हो चुके हैं। तो तकरीबन जो है 600 से 700 लोग जो हैं इस वक्त सड़क पे मौजूद हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं है। बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये गांव आज भी ऐसा नहीं लगता कि 21वीं सदी का हिस्सा है, क्योंकि बिजली जैसी बेसिक फैसिलिटी इस गांव में इस वक्त भी मौजूद नहीं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। पानी की बात करें तो बहुत कम पीने की पानी की फैसिलिटी है। फायर एंड एमरजेंसी आप हाल देख ही सकते हैं, क्योंकि अगर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज इस गांव में, इस इलाके में कहीं मौजूद होता तो शायद आग इस तरह से इस गांव को तबाह नहीं करती। हेल्थ सर्विस की बात करें तो 6 महीने तो कट ऑफ रहता है ये इलाका, तो अगर उस दौरान कोई शख्स बीमार हो जाए तो अगर हेलीकॉप्टर की सर्विस मिल जाए तो बेहतर, अगर वो सर्विस ना मिले तो वो शख्स जो है यहीं दम तोड़ बैठता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हेल्थ सेंटर तो मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर्स विंटर में तो बिल्कुल नहीं आते और समर में भी कभी कभार नज़र आते हैं, और अगर 3 डॉक्टर्स हैं तो उनमें से 1 आएगा, 2 छुट्टी पे रह जाते हैं। तो ये 21वीं सदी में इस गांव का, इस बस्ती का हाल है। तो ये गांव जो है ना वो ये सड़क के ऊपर जो है ये पुराना गांव कहते हैं उसको, पुराना। ये जो नीचे वाला है ये इसको नया मलड़वन गांव कहते हैं। ये नई जो यहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये अगला मकान यहाँ है, ये हमारा हमसाया है। इसने मकान 6 साल लगे बेचारे को इस मकान को बनाते बनाते, अभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो मिस्त्री अंदर ही काम कर रहे थे, आग लग गई। पानी तो है लेकिन बिजली की यहाँ पूरे इलाके, इस गांव की बात छोड़ो, पूरे इलाके में कोई बिजली की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना फायर एंड एमरजेंसी अगर यहाँ पे होती तो ये वाक़ा नहीं होता है। हमने इससे पहले भी बहुत बार कहा है, इससे पहले भी इसी साल में ये जो अगला गांव है वहाँ पे वाक़ हुआ था, वहाँ पे भी हमने बहुत रिक्वेस्ट की है। ये बिछड़ा हुआ इलाका है, मजलूम लोग यहाँ पे रह रहे इस इलाके में, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बेचार बेबस, हम और कुछ नहीं कर सकते। हम अल्लाह से मांग सकते हैं और कुछ नहीं। हमारा कोई आज तक किसी ने ऐसा कहा, अगर यहाँ पे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस होती तो शायद इतना बड़ा हादसा पेश नहीं आता। हमें विंटर में ऐसे देखो हमारे छत उड़ गए हैं। हाँ, अब समझो कि अगर ये छत होता भी है, लेकिन हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ की बहुत प्रॉब्लम होती है। डिलीवरी केस होता है, फिर वो यहाँ पे या तो यहीं पे मर जाती है वो,
या तो उसको एयरलिफ्ट किया जाता है। अगर ये वेदर कंडीशन ख़राब हो जाती है फिर उसकी डेथ यही भी हो जाती है। तो हेल्थ इश्यूज रहते हेल्थ इशू हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हम बात करें सर हेल्थ की बात करें या एजुकेशन की बात करें या और भी बात करें, यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जो ये आशियाने उजड़ गए हैं, हमें ये आशियाने फिर से एक बार हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये गाँव जो है ये गुर्बत से डूबा हुआ गाँव है, इलाका पूरा इलाका गुर्बत से डूबा हुआ है। तो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब समझो कि वो उनकी अब वो पोटेंशियल नहीं रही है वो मकान बनाने की, वो क्या कर सकते हैं। तो हम सिर्फ एक अल्लाह से मांग सकते हैं और उसके बाद अगर हुकूमत ने हमारे लिए कुछ किया, खासकर हम यहाँ जो उमर साहब आए थे उसने कहा था हम 2 लाख मैं अपने फंड में रिलीज़ कराऊंगा, लेकिन सर आप देखिए कि यहाँ पे हमारे रोड भी नहीं है सर, रोड कुछ भी नहीं है हमारा यहाँ, तो मलबा ही 3-4 लाख रुपये निकालने में हम क्या कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमें खासकर कोई मदद करे तो हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। पूरा गांव गुर्बत से डूबा हुआ, क्या कोई कुछ नहीं कर सकता है सर। ये इस गांव का आखिरी मकान है जिस वक्त जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, और इसके बाद जो है जो नई बस्ती है वो बिल्कुल आग की जद में नहीं आई है। यहाँ जो रहते हैं उनका ये कहना है कि मकान जो है तकरीबन 3-3.5 घंटे जलता रहा, क्योंकि नई कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट का यूज़ हुआ है, तो काफ़ी देर तक ये मकान जलता रहा। लेकिन जो पुरानी बस्ती है वो तकरीबन 1 घंटे में साफ़ हो गई थी, आग की जद में आ गई थी। जैसा कि हमने आपको दिखाया, पुरानी बस्ती तमाम पुराने तर्ज पे बनी थी, लकड़ी की बनी हुई थी, और उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी पुराने तर्ज व तामीर पे हुई थी, इसलिए जो वो बस्ती है उसको जलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इनके इस मकान की बात करें तो ट्रिपल स्टोरी मकान बड़े प्यार से इन्होंने बनाया था, इनसे हमने बात भी की, इन्होंने मकान बनाया था और कुछ वक्त पहले ही ये मकान जो है कंप्लीट भी हुआ था। लेकिन इस मकान में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। आप देख सकते हैं हालत कैसी है इस मकान की अभी। और अभी हम इनके फ़र्जंद से, जिनका ये मकान है, उनसे बात कर रहे थे। महज कुछ चीज़ें इस मकान में बची है। इन्होंने कहा कि सामान भी बाहर लाया है, लेकिन सामान जो है सारे पूरी तरीके से डैमेज हो गया। आप देख भी सकते हैं कि सामान जो इनके मकान से निकला है कि उसकी हालत जो है वो ठीक नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी खर्चा हुआ है। मकान जो है, ये गांव जो है कट ऑफ रहता है काफ़ी वक्त तक, काफ़ी दुश्वारियां ओवरऑल जो है इन सब को फेस करनी पड़ती है। सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से इनका यही मुतालबा है कि हमारी जितनी हो सके उतनी मदद हो जाए, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो विंटर का है और मौसम सरमा में जो है ये गांव पूरे कश्मीर से, पूरे जम्मू कश्मीर से जो है कट के रह जाता है, अलग हो जाता है, और 6 महीने तक यहाँ बिल्कुल भी कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। 70 से 75 घर तो आग की जद में आ गए, लेकिन आग लगने की वजह जो है काफ़ी हैरान कुन है। जैसा कि हम जानते हैं इस गांव में बिजली तो नहीं है 21वीं सदी में होकर भी, और यहाँ के लोग जो हैं सोलर इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके पास सोलर पैनल्स हैं और उसी से वो जो तमाम चीज़ें बिजली से होती है वो उनसे करते हैं। अब सोलर पैनल के साथ साथ इनके पास एक छोटी सी बैटरी आती है, उसका ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से जो है इस गांव में आग लगी। सबसे पहले एक घर में आग नमूदार हुई। विंटर का सीज़न है तो इन्होंने घास जो है वो जमा करके रखा था, अपना तमाम जितना भी लाइव स्टॉक है इनके पास जो मौजूद होती है चीज़ें, खाने पीने का सामान, वो वहाँ जमा करके रखा था, जिसकी वजह से एक मकान में आग लगने के साथ साथ कई सारी मकान जो हैं आग की जद में आ गए। और आग लगने की सबसे बड़ी वजह एक और जो ये बता रहे हैं वो ये है कि जो पुरानी बस्ती है ये पुराने तर्ज़ तामीर पे बनी हुई है। यहाँ लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और लकड़ी में आग, जैसा कि हम सब जानते हैं, काफ़ी जल्द से लग जाती है, जिसकी वजह से जो है 70 से 75 मकान इस गांव में आग की जद में आ गए हैं। आप इस गांव में आए, आपने इस गांव की हालत देखी, हम सब जानते हैं कि काफ़ी बुरी हालत है। टोटल असेसमेंट आपने की होगी, तो कितना नुकसान है आपके अंदाजे से इस गांव में? जहाँ तक हमारा असेसमेंट का ताल्लुक है, यहाँ पे 60 फैमिली जो है वो इफ़ेक्ट हुई है। तो टोटल जो तकरीबन 80 जो मकानात जो है वो ये फायर से खाक सर डैमेज हुए हैं। तो हम इसी असेसमेंट के मुताबिक यहाँ रिलीफ की काम कर रहे हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह रिलीफ का काम शुरू करेंगे। इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर ज़रूरत है, अभी जो फूड किट्स वगैरह आते हैं, जो कपड़े वपड़े ये भी आते हैं वहाँ से, तो ज़्यादा ज़रूरत इनको मेरे ख़्याल से मकान की शेड की ज़रूरत है
और अगर लकड़ी हो सके तो लकड़ी की ज़रूरत है बहुत, ताकि ये इनको मवेशी भी जो है कैटल जो है तो उनके लिए भी कोई रहायश गाह तैयार कर सकते हैं। खुद के लिए ये तो कर सकते हैं उधर इधर, मगर मवेशियों का बहुत बड़ा मसला है। तो आपने नुकसान की बात की, अगर हम देखें तो कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा ज़रूरत है या कितना सामान ज़रूरत है इस गांव में इमीडिएटली तो मेरे ख्याल से यहाँ तो तकरीबन 1-1 लाख होना चाहिए। इमीडिएटली जो रिलीफ होना चाहिए एक फैमिली को 1-1 लाख होना चाहिए इमीडिएटली, हाँ मिनिमम। उसके साथ साथ अगर ओवरऑल नुकसान की बात करें, कितना नुकसान तो नुकसान की तो बात ही नहीं है। एक मकान अगर हम कंसिडर करें, ऐसा मकान बनाएंगे आज तैयार करेंगे, इसको 30 लाख 50 लाख यहाँ लगेंगे, लकड़ी में, सीमेंट में, बाजरी में वगैरह। तो 50 लाख कौन दे सकता है? वो नहीं हो सकता है। लिहाजा जितना हो सके उतना रिलीफ के काम तेज़ी से ज़ोर से शुरू करे, तो जिसको जितना ताकत होगा वो उतना। NGO, मैं सारी NGOs को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए आगे आइए और इनको मदद दें, ताकि जो विंटर आने वाला है, यहाँ पे आपको पता ही होगा शायद, यहाँ पे तकरीबन 10 फुट 15 फुट 20 फुट बर्फ़ पड़ते हैं। तो एक जो हमारा जो फ्लोर होता है उससे काम नहीं चलेगा। अगर शेड भी बनेगा उससे काम नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर सकती उसमें। यहाँ की माएँ बहनें कहती है कि हमने अपनी शादी के लिए, अपनी बाकी तमाम चीज़ों के लिए जो है कुछ चीज़ें जमा की हुई थी, जिसमें कश्मीरी में ख़ास तौर पे गांव में देहात में देखें तो त्राम जिसे हम कहते हैं, वो मेटल के सामान जो हैं, समावार होता है, बर्तन होते हैं, वो जमा किए थे। तो तमाम वो चीज़ें जो हैं वो भी खाकिस्तर हो चुकी है। उसके साथ साथ जैसा हमने आपको बताया कि तकरीबन 1000 के आसपास यहाँ की आबादी रहेगी, लेकिन मुलाजिम अगर सरकारी देखें तो 10-15 से ज़ायद मुलाजिम भी नहीं है। तमाम जो लोग हैं या तो खेती बाड़ी करते हैं, वो भी काफ़ी कम ज़मीनें इनके पास जो हैं वो मैसर हुई हैं। इनके पास काफ़ी कम ज़मीनें हैं जिस पे खेती बाड़ी की जाए। कुछ माल मवेशी इनके पास है, और बाकी जो लोग हैं वो ख़ास तौर पे मज़दूरी करते हैं और यहाँ से दूर जगहों पे जाते हैं, या तो किश्तवाड़ जाते हैं या तो अनंतनाग चले जाते हैं। तो जिस वक्त ये आग लगी भी है उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो अपनी मज़दूरी के सिलसिले में कई और जगहों पे गए थे। यहाँ हमने कुछ NGOs से भी बात की, जिन्होंने कहा कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, इमीडिएट रिलीफ जो है अगर 1-1 2-2 लाख मिल जाए वो भी कम है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम NGOs से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ आएँ और यहाँ आके काम करें। इससे पहले भी कई बार इस इलाके में आग की वारदातें जो हैं वो हुई हैं। 2016 की बात करें तो सुखना इलाके में आग की वारदात पेश आई थी, जिसमें 84 मकान जो हैं वो आग की जद में आ गए थे। और ठीक उसी तर्ज पे इस बार भी जो ये इलाका है मुल वर्डवन का, वहाँ 70 से 80 मकान जो हैं आग की जद में आए, जिसे हम कहर इलाही ही कह सकते हैं, क्योंकि पूरे का पूरा जो गाँव है वो खाकस्तर हो गया है, नेस्त नाबूद हो गया है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में तमाम तर जो इनकी मुश्किलात हैं वो ठीक हो जाएं और ये एक बार फिर से हंसी खुशी अपनी ज़िंदगियां बसर करें। अभी के लिए इतना ही। इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, वर्डवन।